Hello, my name is Siddharth Bhattacharjee. I am from Calcutta and I am teaching physics for NEET and JEE exam from last almost 6 and 7 years. And from my past years, I have already produced some ranks in AIMS Delhi, AIMS Bhubaneswar, IIT JEE and also in some JEE mains All India colleges. And there are many students of me who are right now starting MBBS and BTech in West Bengal also. And even in many of the NITs which are one of the prestigious institutes of our India. So today in this video I am going to teach two very simple concepts. These concepts are very simple but students find some difficulty to solve the problems when they ask in NEET and JEE exam. So we will teach this particular concept in a very cool manner and in a very easy way. So first of all, the concept that I am going to teach right now is from the chapter Newton's law of motion. So, according to the second law of Newton's law of motion, if I say the second law, what the Newton says, according to the second law of Newton's law of motion, is he says that if any body is experiencing the change in momentum with time, at that moment the force will be proportional to the rate of change of momentum. इसका सिंपल मतलब बोला जाए तो भाई ये होता है कि अगर किसी बॉडी का टाइम के साथ साथ उसका मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, अगर वो चेंज होता है, अगर मोमेंटम चेंज होता है मैंने बोल दिया तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि या तो मोमेंटम का वैल्यू चेंज हो गया या तो मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो गया या तो दोनों ही चेंज हो गया, बिकॉज रिमेंबर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So whenever I am telling that a vector quantity is changing, it means that the magnitude or the direction or both of them are changing. Only at that time I can say that the momentum is changing. So if this kind of phenomena happens at any particular moment, then we can say the rate of change of momentum, rate means the change with respect to the time, is proportional to the force applied. That means more will be the rate of change of momentum, more will be the force applied. Right? So from this thing I can say that the force is equal to something constant into rate of change of momentum. Rate of change of momentum is dp by dt. Whenever I am saying that dp by dt, it means that I am particularly talking about a particular moment. Right? So if this value of k is equal to 1, then we can write that f equal to dp by dt. Right? So this is the law of second law of Newton's law of motion. Right? Now see, from this particular concept many of the questions are. So I am going to teach right now one of the questions that was being asked in Orient exam also. Right? So the question was, it is a very simple question. If a particular person knows this phenomena, then he can already just solve the question very easily. Right? So what is the question? That suppose that it is a ball and a ball of mass m is coming like this, right? The mass of the ball is m and the velocity of the ball or the speed of the ball is v, right? And it is striking on the ball at an angle of theta with the horizontal axis. So this is theta. And it was told in the question that whenever it will rebound, then the angle will also be same, right? So if the ball bounces back like this way, if the ball bounces back like this way, then the angle will also be same with the horizontal axis. And the speed is also same. Okay? Is also v. And the change in the direction, that time in which the direction was changed, that was small t. So if this phenomena happens, then the question was, what is the force applied by the ball on the ball? Or what was the reaction force that was applied by the ball on the ball? Right? So both the answers are same, only the direction of the forces will be different, right? Because action is positive, then the reaction will be in the negative side, right? So अगर हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने जाएंगे, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले दिमाग में तो ये आना चाहिए कि फिर सवाल में पूछा क्यों है फोर्स के बारे में, क्योंकि सवाल में तो हमने को सिंपली ये दिया गया था कि भाई साहब यहाँ पे बॉल आ रहा है जो स्ट्राइक करके बाउंस बैक करके ऐसे सीधा जा रहा है एक एंगल पे, राइट? तो अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पे फोर्स के बारे में बात क्यों किया गया? तो पहले उसको समझते हैं. बात ये है कि जब बॉल यहाँ से आ रहा है, जब यहाँ से बॉल आ रहा है तो उसके पास एक मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम था उसके पास, दैट वाज मास इनटू वेलोसिटी. दिस वाज द इनिशियल मोमेंटम द बॉल. अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जब बॉल यहाँ पे रिटर्न बैक करके आ रहा है तो उस कंडीशन में उसके पास जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा दैट इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी व्हिच इज आल्सो सेम. तो अगर देखा जाए तो बॉल तो जा रहा था कुछ पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में, लेकिन उस बॉल का एक रिफ्लेक्शन आ गया.
वो इतना सा घूम गया। अगर वो घूम गया इसका मतलब जो मोमेंटम का डायरेक्शन था वो चेंज हो गया। और मैंने कंसेप्ट स्टार्टिंग में बोल दिया तुम लोग कि भाई अगर ऐसा होता है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम चेंजेस और द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम चेंजेस, बोथ ऑफ देम, then you can say the force has been applied on the particular body। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे जो कि डायरेक्शन में चेंज आ गया मोमेंटम का, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स अप्लाई है। तो सवाल जो यहाँ पे पूछा गया है उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे ये पूछा गया था कि भाई डायरेक्शन तो चेंज हुआ है ना, इसका मतलब फोर्स अप्लाई है। तो फोर्स कितना है अपने को बोल दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है फ्रॉम द ज्योमेट्री वी कैन से दैट दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा एंड इफ दिस एंगल इज थीटा देन अगर यहाँ पे v है उसका वेलोसिटी, तो जिस साइड में थीटा होता है फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ वेक्टर वी कैन से उस साइड में उसका cos कंपोनेंट आएगा और जो cos कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा sin कंपोनेंट। सो दीस आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, राइट। Now coming to the final velocity vector, if I see here if this angle is theta then also from the geometry we can say that if this velocity is v then and this angle is theta then this angle must be theta and if this is v तो जिस साइड में थीटा होगा उस साइड में v cos थीटा आएगा और cos के परपेंडिकुलरली v sin थीटा। चलो ये तो बढ़िया बात हो गई, ठीक है। अपने पास तो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट आ गया। अभी हम लोग चाहेंगे यहाँ पे मोमेंटम निकालने के लिए, तो बढ़िया आ रहा है यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है बताओ। मोमेंटम का अगर इनिशियल मोमेंटम का बात किया जाए दैट मींस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, राइट। अच्छा, इस चीज को सॉल्व करने से पहले हम लोग ना एक चीज सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज कर लेते हैं। क्या साइन कन्वेंशन यूज करेंगे? अगर हम लोग राइट साइड जाएंगे तो उसको हम लोग लेंगे प्लस आई का, अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस आई का, ऊपर जाएंगे प्लस जे का, नीचे जाएंगे माइनस जे का। इस साइन कन्वेंशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर यूज करेंगे यहाँ जो अपने पास वेलोसिटी मोमेंटम आएगा दैट इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी क्या था देखिए। इनिशियल वेलोसिटी था अपने पास v cos थीटा, कौन सी डायरेक्शन में? राइट साइड बोले तो प्लस i कैप, दैट मींस इट विल बिकम v cos थीटा i कैप। अच्छा, और क्या है? v sin थीटा है, कहां पे है? नीचे है, नीचे का मतलब माइनस है, तो लिखते हैं यहां पे माइनस v sin थीटा j कैप। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल कर आएगा देखो, v cos थीटा mv cos थीटा i कैप माइनस mv sin थीटा j कैप। So this is the expression of the initial momentum of this particular ball, right? Now I am coming to the final momentum. What is the final momentum? See, अगर फाइनल मोमेंटम देखा जाए तो सेम तरीके से देखो, जो उपाय हम लोगों ने ऊपर वाले के लिए अप्लाई किया था वही सेम प्रोसेस नीचे वाले के लिए अप्लाई करेंगे, बट तुम लोगों को मेरे साथ करना पड़ेगा। कैसे? देखो जरा, फाइनल मोमेंटम के लिए क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, है ना, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब चालू करो, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी कितना है जरा बताओ। सेम तरीके से यहाँ पे कितना है? v cos थीटा, कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट के साइड में, अगर लेफ्ट में है तो क्या है? माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस v cos थीटा i कैप। अच्छा, और क्या है? v sin थीटा, कौन सी डायरेक्शन में? नीचे, नीचे मतलब माइनस j कैप, क्या लिख देंगे? माइनस v sin थीटा j कैप। तो यहाँ पे अपने पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, माइनस mv cos थीटा i कैप माइनस mv sin थीटा j कैप। तो ये तो आ गया अपने पास फाइनल मोमेंटम। चलो अपने पास क्या क्या आ गया? इनिशियल मोमेंटम आ गया, फाइनल मोमेंटम आ गया। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या पूछा था? क्या बोला था न्यूटन के सेकंड लॉ ने? अगर हम लोग मोमेंटम का चेंज का रेट निकाल ले तो फिर वो फोर्स को दिखा देगा, है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे भी ये करें कि भाई फोर्स इक्वल टू चेंज कितने का है मोमेंटम में? फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो आ गया चेंज। क्या पूछा है? रेट पूछा है। अगर रेट पूछा है तो फाइनल टाइम कितना है? t, इनिशियल टाइम कितना था? 0। तो अपने पास क्या आ जाएगा देखो, अगर हम लोग फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तो मेरे तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा नहीं करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे अपने पास उतना टाइम होता नहीं है कि हम लोग हमेशा यहाँ पे फाइनल वाला वैल्यू पुट करेंगे फिर से इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पे देख के सॉल्व करना चालू करेंगे। देखो इनिशियल के सामने क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास प्लस, है ना। आप दोनों को देखो यहाँ पे ऐड करो तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये प्लस mv sin थीटा j है माइनस mv sin थीटा j है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस mv cos थीटा आएगा, माइनस mv cos थीटा आएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस 2mv cos थीटा i कैप
divided by t. So this is the expression of the force that is being applied on the ball, or you can say the reaction force that will be applied by the ball on the ball. राइट तो ये तो आ गया अपने पास इस वाले सवाल के जवाब। अगर मुझे कोई ये पूछ ले कि भाई साहब ये बताइए कि यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं लिखना है, माइनस साइन नहीं लिखना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2mv cos थीटा डिवाइडेड बाय t। तो ये तो आ जाएगा अपने पास फोर्स का एक्सप्रेशन। आई होप कि क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोग आ गया, चलो अगर आगे आते हैं इसके बाद हम लोग जो कि मोमेंटम के बारे में बात करते हैं अभी, तो मोमेंटम से एक और भी चीज आता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, जो रोटेशनल मोशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो लीनियर मोमेंटम में हम लोग क्या बोलते हैं कि लीनियर मोमेंटम अगर होता है कि अगर मोमेंटम की बात किया जाए दैट इज इक्वल टू मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अगर क्या हो कि कोई बॉडी अगर रोटेशन में, कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करता है, उस केस में भी तो उसके पास एक मोमेंटम होगा जो कि उसके रोटेशन के कारण उसके पास आया। उस मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मोमेंटम को हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। याद रखना जो लीनियर टर्म होता है मास, उसका रोल को रोटेशन में प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला, जो लीनियर टर्म होता है मास, उस टर्म को रोटेशन में प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो लीनियर स्पीड होता है या फिर वेलोसिटी होता है v, उसको हम लोग रोटेशन में दिखाएंगे एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास एंगुलर मोमेंटम, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही चीज में एक चीज हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या तो लीनियर मोमेंटम या तो एंगुलर मोमेंटम, और वहां से सवाल करेंगे। चलो देखो बात क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में तुमने बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया या फिर बाहर से कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया। टॉर्क क्या होता है, सीधा सीधा होता है कि भाई लीनियर मोशन हो रहा है, उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है जो लीनियर मोशन को परफॉर्म करवाता है दैट इज एफ, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, लीनियर। अगर उसी फोर्स के वजह से कोई भी एक रोटेशन मोशन परफॉर्म होता है तब उसका नाम हो जाता है टॉर्क। क्लियर? तो बात दोनों का तो सेम ही है भाई, इंसान तो दोनों ही है, बस कोई अमेरिका में रहना है तो उसका लाइफस्टाइल कुछ और हो गया, कोई इंडिया में तो उसका लाइफस्टाइल कुछ और हो गया, बस इतना डिफरेंस है, बाकी इंसान तो वो दोनों ही है ना। तो यहाँ पे भी काम वही है कि भाई दोनों का काम ही ये है कि उसका मोमेंटम में चेंज करवाना, उसका मूवमेंट करवाना, उसका सिचुएशन को चेंज करवाना, उसका पोजीशन को चेंज करवाना, है ना। ये सब कुछ उसका कुछ रोल है वहाँ पे। बट द थिंग इज वन पर्सन इज गोइंग एक्टिंग लाइक अ लीनियर मोशन एंड अनदर पर्सन इज एक्टिंग फॉर द रोटेशनल मोशन। जब रोटेशन होता है उसका नाम हम लोग देते हैं भाई टॉर्क, जब लीनियर मोशन होता है तो लीनियर फोर्स, दैट्स इट। तो यहाँ पे बात क्या होता है कि अगर इन दोनों में से कोई सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स, बाहर से कोई टॉर्क अप्लाई नहीं होता तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है या फिर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब क्या है, पहले जितना था बाद में भी उतना होगा। भाई दिमाग की याद, इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बुलाया कि भाई आपको पता है कि 3 + 4 का वैल्यू 7 होता है, ठीक है। अभी मैंने तुमको ये बोलता है कि भाई 3 + 4 का वैल्यू तो 7 है और हमें इसको मेंटेन रखना है। तो अगर ऐसे मेंटेन रखना है जिसका मतलब है कि अगर मैं 3 को 1 बढ़ा दूं तो 4 को 1 कम करना पड़ेगा। क्यों कम हुआ 4? क्योंकि मैंने रूल तुमको ये दिया था कि भाई तुम कुछ भी करो लेकिन इसका वैल्यू हमेशा 7 ही आना चाहिए। इसका मतलब 1 में अगर चेंज आएगा तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, है ना। तो ये जो फंडामेंटल चीज यहाँ पे हो रहा है इसी को हम लोग फिजिक्स में देखेंगे, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन कि पहले भी जितना था बाद में उतना आएगा। क्या इसके चक्कर में ये जो एलिमेंट्स है उनका वैल्यू इसमें चेंज आएगा? हाँ आ सकता है, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ ये है कि दोनों का जो नेट वैल्यू है चाहे वो मल्टीप्लिकेशन से चाहे वो एडिशन से वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। दैट इज द कंजर्वेशन, राइट। तो यहाँ पे उसी चीज को हम लोग देखेंगे। तो बात क्या, अगर मैं बोलता हूँ कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ LMC, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। इसमें क्या बोलता है कि अगर कोई भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना हो तो उसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम वो हमेशा सेम रहेगा। और इसी फंडामेंटल चीज के ऊपर डिपेंड करके जब कोई बंदूक से गोली निकलता है या फिर कोई कैनन से तोप निकलता है देन इट रिक्वायर्स, क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फंडा वहां पे है, राइट। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि मास इनटू a1 इनटू v1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू m2 इनटू v2 वेक्टर। चलो ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब देखो तुमको क्यों बोला कि भाई ये है, इसको और एक तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन के तरीके से भी सीख सकते हैं कि अगर फोर्स 0 है इसका मतलब ये है कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज dp/dt, जो मैं थोड़ी देर पहले तुमको बताया था, दैट इज आल्सो 0। अब अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 आता है इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट। यहां से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, राइट।
अभी अगर तुम लोग इस चीज को सीख गए, और मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था कि लीनियर मोमेंटम वाले टर्म को एंगुलर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम भी तुमको समझ में आ जाएगा, उसका कंजर्वेशन तुमको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो बहुत आसान है। मैंने क्या बोला था, लीनियर में एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क, लीनियर में एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं एंगुलर मोमेंटम वो हो जाएगा भी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो चेंज है दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझे बात? रेट ऑफ कांस्टेंट है ना उसका, इसका मतलब यह है कि जो L है वो क्या है, जो इसका एंगुलर मोमेंटम है दैट इज कांस्टेंट। अगर ये एक कांस्टेंट है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वही होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम, राइट? अब जरा देखो क्या होता है, लीनियर टर्म में m, एंगुलर में क्या हो जाएगा I, तो m1 हो जाएगा I1। लीनियर में v1 इसमें हो जाएगा ओमेगा 1 इक्वल टू लीनियर में m2 इसमें आ जाएगा I2, लीनियर में v2 इसमें हो जाएगा ओमेगा 2। ये आ गया ना अपने पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही आसान चीज है ना। तो अभी इस चीज के ऊपर हम लोग ये पर्टिकुलरली जो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है उसके ऊपर हम थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे। राइट? मैंने इसको क्यों समझा है, क्योंकि इसलिए समझा है क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम और जो एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ भी नहीं है, बस वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, बस एक लीनियर टर्म पे अप्लाई किया जाता है, एक रोटेशन के टर्म पे अप्लाई किया जाता है। तो अगर अपने पास ये वाला कांसेप्ट क्लियर है तो जाहिर सी बात है ये तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएगा, है ना। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। सवाल बहुत ही आसान है। सवाल क्या बोला जा रहा है, सवाल ये बोला जा रहा है कि भाई साहब एक ये अपना प्यारा धरती हो गया, दिस इज द अर्थ, इसका जो रेडियस है दैट इज r। सवाल में ये बोला जा रहा है कि अब ये जो धरती है ना, ये जो अपना जो पृथ्वी है अर्थ, इट इज रोटेटिंग विद अ पर्टिकुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, राइट? और इसका एक दिन का जो डे का लेंथ है दैट इज 24 आवर्स। हमको पता है ये ना कि 24 घंटे में एक दिन होता है। सवाल में बोला गया कि ये जो धरती है ना अचानक से स्विंग करने लग गया, इसका जो रेडियस है वो 1/4 हो गया पहले से, तो अभी जो इसका रेडियस है वो कितना हो गया 1/4। तो अभी जो अर्थ है वो छोटा हो गया, इसका रेडियस 1/4 हो गया दैट इज r/4 हो गया, है ना। तो अब की बार एक दिन का लेंथ क्या 24 घंटा होगा या फिर उससे ज्यादा होगा या फिर उससे कम होगा, क्या वो हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए जरा जवाब लगाते हैं। पहली बात तो ये जो अर्थ का साइज जो श्रिंकिंग हुआ, क्या उसके लिए बाहर से किसी ने कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल टॉर्क कुछ भी अप्लाई किया? नहीं, हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई हलचल हुआ होगा, कोई ऐसा फिनोमेना हुआ होगा जिसकी वजह से वो स्विंग कर गया, कोई यूनिवर्सल कुछ काम किया होगा उसके ऊपर, यूनिवर्सल एनर्जी का कुछ इफेक्ट होगा उसके ऊपर, या फिर कोई पॉजिटिव एनर्जी काम किया जिसकी वजह से इसका जो रेडियस है वो स्विंग कर गया। इसको ना बाहर से किसी का इंफ्लुएंस नहीं था, जो भी हुआ सिस्टम के पार्टिकल्स ने अपने आप से किया। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनके जो एप्लीकेशंस होता है, जो सवाल दिया जाएगा, कहीं पे भी ये बोला नहीं जाता है कि जो फोर्स है वो एक्सटर्नल जीरो है, जो टॉर्क है वो एक्सटर्नल जीरो है। तुमको सवाल पढ़ के खुद बताना पड़ेगा कि भाई सिचुएशन ऐसा ऐसा है, बस थोड़ी दिया गया, तुमको जजमेंट देना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कहीं पे बोला नहीं गया कि बाहर से कोई फोर्स नहीं है, बाहर से कोई टॉर्क नहीं है, तो हमने सिचुएशन को देख के फिर भाप के फिर हमने बताया कि अच्छा ऐसा चल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर 0 है, दैट मींस इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, राइट। अब देखो I1 क्या है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अर्थ में एक सॉलिड स्फीयर होता है, अगर इसका मास हम लोग m मान तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2/5 mr², राइट, इनटू अच्छा ओमेगा 1, ओमेगा का वैल्यू तो दिया है और क्या दिया गया इसका टाइम। ये जो टाइम है ये क्या है, एक बार पूरा घूमने का टाइम है, जिसको हम लोग टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2π ओमेगा। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ओमेगा है दैट इज इक्वल टू 2π/t, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2π/t1 दैट इज इक्वल टू I2 कितना हो गया, I2 कितना हो गया 2/5, मास तो वही है, मास तो वही है, लेकिन इसका रेडियस अभी r नहीं r/4 हो गया। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे r/4 का स्क्वायर दैट मींस r²/16 इनटू ओमेगा। अच्छा ओमेगा 2 को भी हम लोग सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं ना
2 पाई बाई T2, क्योंकि अपने को तो वही निकालना है ना, इसका टाइम कितना होगा। चलो अब काम करते हैं। यहाँ पे 2 बाई 5m r स्क्वायर, 2 बाई 5m r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अपने पास? अपने पास बच गया यहाँ पे कि T2 दैट इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय 60। T1 कितना था? पहले एक दिन का लेंथ कितना था? 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 60, तो अभी कितना आ जाएगा? 4, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 4, तो ये आ गया अपने पास 3, ये 2, अरे बाप रे बाप, 3/2 दैट मींस 1.5 आवर। अब सोचो जरा, एक दिन जो पहले 24 घंटे में खत्म हो रहा था, अभी उसी एक दिन को खत्म होने में लग जाएगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे एक दिन खत्म है, 24 घंटा नहीं चाहिए आपको एक दिन खत्म करने में। बस अगर पृथ्वी का जो रेडियस है ना वो अगर सिकुड़ जाए, इफ इट रिड्यूस्ड अप टू r/4, 1/4 ऑफ दिस रेडियस, फिर उसका जो दिन का लेंथ है वो कम हो जाएगा, 1.5 घंटे में एक दिन खत्म हो जाएगा। सोचिए, तो यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके ऊपर और भी काफी सारे सवाल पूछा जाता है जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी है हम लोगों को, इसके ऊपर हम लोग आगे भी बातें करेंगे। तो अभी ये तो चला गया एक प्रॉब्लम जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस करके आता है, और भी कुछ प्रॉब्लम आता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Right now actually I have faced that many of the students of my coaching institute also, where I am currently working right now in Goa as a full-time senior physics faculty, वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा डिस्ट्रप्टिव टाइप के होते हैं, जिनको मैं टैकल करने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे बहुत बच्चों को मैंने किया भी है। उनको मैं हमेशा ये देखता हूँ कि उनके पीछे का कारण क्या है। If it is getting disrupted, then why the reason is behind that? तो उस टाइम में मैं उसके साथ हमेशा ये करता हूँ कि क्लास के अंदर उसके कोई छोटी छोटी पॉजिटिव थिंग्स जो है, जो कोई पॉजिटिव आंसर वो कभी दे दे, उसको मैं इंकरेज करता हूँ, ताकि उसके दिमाग पे रहे कि भाई नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो शायद गलत है, या फिर मुझसे भी बहुत कुछ हो सकता है। उसके साथ मैं पर्सनली बात करता हूँ बाहर जाकर, या फिर उसको मैं टाइम देता हूँ कि भाई तेरे पास जितने भी तेरे डाउट्स है, तेरे पास जितने भी कुछ दिमाग पे चल रहा है, हो सकता है उसका कुछ मेंटली कुछ है ब्लॉक है, हो सकता है उसका कुछ कंसेप्ट ब्लॉक है, या फिर कोई पर्सनल इशू है जिसकी वजह से वो शायद ऐसा कोई बिहेवियर शो कर रहा है। तो ऐसा कुछ करने के बाद मैंने देखा है कि वो जो बच्चा है वो अपने आप पढ़ने में इंटरेस्ट हो जाता है और उसका वो डिस्ट्रप्टिवनेस जो है वो टूट जाता है। उसके बाद मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका लर्निंग कैपेबिलिटीज डिफरेंट होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी से सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट से सीखता है। तो मेरे लिए उसके लिए ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि क्लास के अंदर जो कि मिक्स्ड क्राउड होता है, तो उसमें तो मैं एवरेज पेस को मेंटेन रखता हूँ। क्लास में मैं एक कंसेप्ट को बच्चों को हर बार पूछता हूँ कि क्या तुमको समझ में आया है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो क्लास के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 बार बोल के उसको और भी समझाऊँ। अगर फिर भी नहीं होता है, जो कि क्लास का टाइम बाउंडेड है और सिलेबस टाइम पे खत्म करना है, तो मैं क्लास के बाहर उसको अलग से टाइम देता हूँ और उन लोगों को लेकर मैं अलग से बैठता हूँ जिनको समझने में टाइम लगता है। क्योंकि मैं ये हमेशा बिलीव करता हूँ कि हर इंसान के पास वो कैलिबर है कि उसको हर चीज़, हर कंसेप्ट समझ में आए, और ये हर किसी से हो सकता है। कोई भी लड़का या कोई भी लड़की, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है कि वो दिमाग से थोड़ा स्लो है या फिर उससे वो होगा नहीं। हर किसी से ये काम हो सकता है, बस ये कि किसी को थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, किसी को थोड़ा कम टाइम में वो कैच कर लेता है। तो जो बच्चे थोड़ा स्लो है उसको मैं अलग से टाइम देता हूँ बाहर जाके, और उसको लेके मैं अलग से बैठ जाता हूँ, वही कंसेप्ट दोबारा उसको समझाता हूँ ताकि उसके दिमाग में वो सेट हो जाए। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो क्लास में पढ़ाते टाइम मैं ये हमेशा नोटिस करना चाहता हूँ कि भाई मेरे जो बच्चे हैं यहाँ पे, दे शुड बी इंटरेक्टिव विद यू। क्योंकि till the time the students are not interactive with the teacher, then the teacher will also not get motivated to teach them, right? So that is why मेरा ये हमेशा ये मेरा फोकस होता है कि मैं जब बात करता हूँ तो मैं स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट करता हूँ और रैंडमली हर स्टूडेंट को पूछता हूँ कि बता इसका आंसर क्या होगा, बता इसका आंसर क्या होगा। तो जो कि मैं रैंडम पूछ रहा हूँ तो बच्चे हमेशा कंसंट्रेटेड माइंड में रहता है, वो हमेशा चाहता है कि भाई ये मैं टीचर के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करना चालू करूँ ताकि जब वो मुझे सवाल पूछे तो मैं उसका आंसर दे पाऊँ। और हर बार जब कोई आंसर देता है मैं पूरे क्लास को बोलता हूँ कि इसके लिए क्लैप करो ताकि वो थोड़ा मोटिवेटेड हो, थोड़ा और एनकरेज हो, और बाकी बच्चे भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे फील करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि भाई हम भी एक अच्छा आंसर दें ताकि पूरी क्लास मेरे लिए भी क्या करें। सो दिस इज द वे आई ऑलवेज इन्वॉल्व द स्टूडेंट दैट यू हैव टू लर्न द पर्टिकुलर टास्क। और ये चीज़ करते करते मैंने देखा है कि एक्चुअली मेरे लाइफ में इतने साल हो गया पढ़ाते ऑलमोस्ट 6-7 साल तो हो ही रहा है। तो मैंने ये चीज़ देखा है हमेशा कि जो बच्चे हैं, जब कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसको पहले लगता है कि भाई उससे तो ये होने वाला नहीं है या फिर उससे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने उसको समझाया, बढ़िया से वो चीज़ मैंने करवा दिया, तो वो बच्चे जब ऐसे उसको समझ जाते हैं उसके शकल पे जो खुशी आता है
वो एक टीचर के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, उससे बड़ा गिफ्ट एक टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकता है। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट व्हेन दैट गाय इज गेटिंग द सिलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर मेडिकल और एमबीबीएस और बीटेक कॉलेज। ऐसा एक स्टूडेंट है मेरा जो मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया भी है, who is right now doing his MBBS from AIIMS Bhubaneswar. He was this kind of student जिसको पहले बहुत डर लगता था, कंसेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता था, फिर मैंने उसको अलग से टाइम दिया, उसको समझा, एंड आफ्टर दिस ऑल प्रोसेसेस he got selected. And when I got the call from him, they said I am selected in AIIMS Bhubaneswar. So that was the biggest gift in my life of that year. So this is all for my side, and thanks for watching my video. And I think that these are all the reasons for which I am perfect for joining Vedanta, because I am that much energetic and I love teaching. Teaching is not a career to me only; it is also a passion from my side. So thanks for watching my video.